ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا دوست تیسری شادی کر رہا تھا پر اس کی ایک بھی اولاد نہیں تھی۔ وہ مجھ سے کہتا اگر تو شادی کرے تو میرے والی غلطی نہ کرنا، بلکہ شادی کی پہلی رات بیوی کے بستر کے نیچے کچی مچھلی ضرور رکھنا۔ میں اس کی بات پر بہت ہنسا، لیکن پھر جب شادی ہوئی تو کچھ سوچتے بیوی سے چھپا کر کچی مچھلی بیوی کے بستر کے نیچے رکھ دی۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو دنیا ہل گئی کہ بیوی درد سے چیخ رہی تھی اور اس کے آسمان پر دھنک کے 7 رنگ آئے ہوئے تھے، جو کہ اس بات کا اندیا تھے کہ دوبارہ بارش نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے بڑوں کو یہی کہتے سنا تھا کہ بارش کے بعد آسمان پر بننے والی دھنک سے بارش نہیں آتی۔ مجھے بارش کے رک جانے کی بہت خوشی تھی، کیونکہ بارش کی وجہ سے بھٹے میں اینٹوں کو پکانے والا کام ٹھپ ہو جاتا تھا۔ مسلسل کئی دنوں سے بارش ہو رہی تھی، مگر دھنک کے 7 رنگ اس بات کا اندیا دے رہے تھے کہ اب دوبارہ نہیں ہوگی۔ میں دھنک کے 7 رنگوں کو اپنی آنکھوں میں اتارنے کے بعد اپنے کام کی طرف چلا گیا۔ میں بھٹے پر منشی تھا، مجھے میرے ابا کی جگہ پر رکھا گیا تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو بھٹے کے مالک نے مجھے ان کی جگہ پر رکھ لیا۔ بھٹے کا مالک بہت رحم دل انسان تھا، وہ تمام لوگوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب میرے ابا فوت ہوئے تو میرے پاس اتنے بھی پیسے نہ تھے کہ میں ان کی تدفین کا سامان کر سکتا، اور نہ ہی ابا کی کوئی جمع پونجی تھی جس سے ان کی تدفین کا سامان کر پاتے۔ بھٹے کے مالک نے ہماری مدد کی اور ابا کے کفن دفن کا انتظام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ پھر اس کے بعد مجھے بھٹے پر کام کرنے کی دعوت دی۔ میں وہاں پر پرسکون ہو کر کام کر رہا تھا کہ اچانک سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو مجھے گھر پر رکنا پڑا۔ جب میں بھٹے پر پہنچا تو وہاں پر سب مزدور اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ میں جا کر اپنی میز اور کرسی پر بیٹھ گیا، جہاں پر پہلے میرے ابا بیٹھا کرتے تھے۔ سب لوگ میری مثال دیتے تھے۔ بھٹے پر کام کرنے والے اور وہاں پر آنے والے لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم بالکل اپنے ابا جیسے ہو، تمہیں یہاں پر موجود دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ تمہارے ابا کو دیکھ رہے ہیں۔ اچانک بھٹے پر کام کرنے والوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے ایک جانب سے آ رہی اینٹوں کی ٹرالی کو دیکھا تو میرے چھکے چھوٹ گئے، کیونکہ اس پہ کوئی بھی ڈرائیور موجود نہیں تھا۔ وہاں پر ایک آدمی نے ٹرالی کو بنا گیئر لگائے چھوڑ دیا تھا، جو کہ اپنی ہی سمت میں چلتی جا رہی تھی۔ سب لوگ اس کے نیچے آنے سے ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ میں جلدی صورتحال کو سنبھالنے کے بارے میں سوچ بچار کر رہا تھا تو اینٹوں کی ٹرالی چلتی ہوئی ایک اینٹوں کے ڈھیر کے پاس آ کر رکی۔ میں جلدی سے ان اینٹوں کے ڈھیر پر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ٹرالی اس کے قریب آئی تو میں جمپ لگا کر اینٹوں کی ٹرالی پر سوار ہو گیا اور اس کے گیئر کو دبا کر گیئر دبانے سے ٹرالی ایک جگہ پر رک گئی تو وہاں پر موجود لوگوں کی جان میں جان آئی۔ تو سب لوگ ٹرالی والے کی اس غلطی پر اسے سرزش کرنے لگے، مگر مجھے اس کی سب میں کوئی غلطی نظر نہ آئی۔ بعض اوقات کچھ کام انجانے میں ہو جاتے ہیں، بس وہ خدا کی طرف سے ایسے ہی لکھے ہوتے ہیں تو انسانوں کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے۔ ٹرالی والا معاملہ بھی مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ میں نے وہاں پر موجود سب لوگوں کو پرسکون رہنے کے لیے کہا۔ سب لوگ میرے ابا کی بہت عزت کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ میری ہر بات کو تہہ دل سے قبول کرتے، تو انہوں نے اس ٹرالی والے کو میرے کہنے پر کچھ نہ کہا اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، ورنہ سب لوگ اس کی درگت بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جب ٹرالی والے سب لوگوں کو اپنے اپنے کاموں میں مصروف دیکھا تو وہ میرے پاس آ کر شکریہ ادا کرنے لگا، مگر میں نے اس سے آئندہ احتیاط کرنے کا کہہ کر کام میں مصروف کر دیا۔ پھر وہ اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ مل کر اینٹیں اتارنے لگا۔ میں دوبارہ اپنے میز پر بیٹھ کر حساب کتاب کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک کسی نے میرے چلتے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جب میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بچے کو سامنے کھڑے پایا، جو کہ بھٹے پر کام کرنے والے کسی مزدور کا بیٹا تھا۔ اسے بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی، مگر اس کا باپ مزدوری کرنے کی وجہ سے اسے کھانا نہیں کھلا رہا تھا، کیونکہ بھٹے پر سب لوگوں کا ایک مخصوص وقت ہوتا تھا جس میں وہ لوگ کھانا کھاتے، تو اسی لیے وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر اپنے بچے کو کھانا نہیں کھلانا چاہتا تھا۔ لیکن اس بچے کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس کے باپ نے مجبور ہو کر اسے میرے پاس بھیجا تاکہ میں اسے کھانا کھانے کی اجازت دے سکوں۔ مجھے بھٹے پر کام کرنے والے لوگوں کے اس اصول کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ مجھے بچے کے منہ سے بھوک سے تڑپنے کے الفاظ سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے جلدی سے اس کے باپ کو بلایا اور اسے سختی سے سرزش کی کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو کھانا کھلاؤ جس کے لیے تم دھوپ میں کما رہے ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے ہو تو اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر آیا کرو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ اس کی ماں زندہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو میں اپنے ساتھ روز لے آتا ہوں، مگر مزدوری کرنے کی وجہ سے میں اس کو وقت نہیں دے پاتا اور یہ بھی مجھے ستاتا رہتا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کے بہت دکھ ہوا تو میں نے اسے بچے کا خیال رکھنے کو کہا۔
जब उसने अपने बच्चे को खाना खिला लिया तो दोबारा मजदूरी पर लग गया। बच्चा अकेला बैठा मिट्टी में खेल रहा था। मुझे इस बच्चे पर बहुत तरस आया तो मैंने उसको अपने पास बुला लिया। मेरे पास मेज़ पर छोटे छोटे बॉक्स पड़े हुए थे जो कि मैंने उसे खेलने के लिए दिए। वो बॉक्स पाकर बहुत खुश हुआ और उनके साथ खेलने लगा। इसके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे अंदर तक सुकून महसूस हुआ क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद थे। मेरी अम्मा कहती थी कि बच्चे तो बाग के फूल होते हैं, इन्हें हमेशा खेलते रहना चाहिए क्योंकि बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए अच्छे नहीं लगते। मैं हमेशा इनकी बातों को गौर से सुना करता था और इन पर अमल करने की कोशिश करता। अब्बा की वफ़ात के बाद से मैं अम्मा के ज़्यादा करीब हो गया था, जिसकी वजह से मैं भट्टे से वक्त पर छुट्टी करके अम्मा के पास चला जाया करता था। थोड़ी देर बाद आकर मजदूर अपने बच्चे को ले गया। मैं भट्टे के मालिक को सारा हिसाब किताब दिखाने के बाद अपने घर की जानिब रवाना हुआ। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो अम्मा दर्द से करा रही थी। मैं दौड़कर उसके पास गया तो उसने मुझे अपनी तबीयत खराबी के बारे में बताया। उसको जोड़ों का दर्द रहता था। वो दवाई तो बहुत लेती मगर इस पर कोई असर ना होता था। जब अब्बा जिंदा था तो इसके लिए मुख्तलिफ हकीमों से दवाई लेकर आता था, जिसकी वजह से इसको वक्ती आराम आता और इसके बाद दोबारा से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता। मैं इसकी इस तकलीफ से बहुत परेशान था। मुझे इसका दर्द बहुत अजीब लगता था जो कि दवाई खाने से ठीक हो जाता और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद दोबारा वही तकलीफ शुरू हो जाती। हकीम की दवाई से उसे आराम आता मगर फिर इसी दवाई से कोई असर ना होता। मेरे लिए ये बात बहुत तशवीशनाक थी तो मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फ़ैसला किया। मैंने अम्मा की तैयारी करवाई और उसके सर पर चादर डालकर उसे बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ पर पहले से ही मरीजों का बहुत रश लगा हुआ था। तो मैं अम्मा को लेकर एक तरफ बेंच पर बैठ गया। वहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद थे सब लोग हड्डियों की दर्द से करा रहे थे। मुझे इन लोगों को देखकर बहुत दुख हुआ। फिर मैंने अपनी तंदुरुस्ती पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। अचानक से वहाँ पर एक लड़के ने आकर बताया कि डॉक्टर आ चुका है, सब लोग काउंटर पर आकर डॉक्टर के पास जाने की पर्ची बनवा लें। मैं अम्मा को बताकर काउंटर पर पर्ची बनाने चला गया। थोड़ी देर बाद मैं पर्ची लेकर अम्मा के पास आया क्योंकि हमारा चौथा नंबर था। अचानक बेंच के सामने लगी हुई स्क्रीन पर चौथा नंबर आया तो मैं अम्मा को लेकर डॉक्टर के कैबिन में दाखिल हुआ। डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठकर दवाइयाँ सेट कर रहा था। जब उसने हमें अंदर दाखिल होते देखा तो अपनी पेशावराना मुस्कुराहट के साथ अम्मा को करीब बेंच पर बैठने का कहा। मैंने उन्हें अम्मा की तकलीफ के बारे में आगाह किया तो वो अम्मा का पूरी दिलजमी से मुआयना करने लगा। फिर उसने मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए जिसको करवाने के बाद ही वो अम्मा की बीमारी की तशखीस कर सकता था। मैं इसकी बात पर अमल करते हुए अम्मा के टेस्ट करवाने के लिए सरकारी अस्पताल की लेबॉर्ट्री में ले गया। थोड़ी देर बाद मैं टेस्टों की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुआ। जब उसने अम्मा की रिपोर्ट देखी तो इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आए मगर उसने अम्मा के सामने कुछ न कहा और मुझसे कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम्हारी अम्मा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अम्मा को भी डॉक्टर की बात सुनकर तसल्ली हुई। उन्होंने कहा कि देखा मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो बस मेरे लिए ऐसे ही परेशान होता रहता है। फिर डॉक्टर ने अम्मा को बाहर ग्राउंड में चलने का कहा तो अम्मा डॉक्टर का कैबिन छोड़कर ग्राउंड में चक्कर लगाने के लिए चली गई। मैं जब अम्मा के साथ जाने लगा तो डॉक्टर ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर अपने मरीज को वक्त से पहले ये बताकर परेशान नहीं करते कि वो इस दुनिया में चंद दिनों का मेहमान है। डॉक्टर की बात सुनकर मुझ पर सातों आसमान आ गिरे। मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं हो रहा था तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि आपके कहने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी अम्मा को हड्डियों का कैंसर है जिसकी वजह से उनके लिए थोड़ा वक्त ही बचा है, बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। हम डॉक्टर तो सिर्फ बीमारी की तशखीस कर सकते हैं या इसके इलाज के लिए अपने मरीज की रहनुमाई। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो, मगर जो कुछ मुझे बता रहा था वो हकीकत थी क्योंकि रिपोर्ट मेरी आंखों के सामने मौजूद थी जिसे मैं चाहकर भी झुटला नहीं सकता था। मैं अपने भारी होते कदमों के साथ डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल आया। जब मैंने अम्मा की तरफ देखा तो वो ग्राउंड में चक्कर लगा रही थी। जो इसके चेहरे पर सुकून और खुशी थी उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए जल्दी से अम्मा के पास पहुंचा और डॉक्टर की तरफ से दिया गया पर्चा जिस पर दवाएं लिखी हुई थी वो अम्मा के हमरा लेने के लिए चला गया। दवाई लेने के बाद हम दोनों घर की तरफ रवाना हुए। उस दिन के बाद से मैं अम्मा का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा। डॉक्टर ने जो दवाई दी थी
वो तो मैं अम्मा को दे रहा था, मगर डॉक्टर ने अम्मा के इलाज से मुतल्लिक मुझे कोई उम्मीद न दिलाई थी। मैंने अपना मामूल बना लिया था कि भट्टे से जल्दी वापस आ जाना और अम्मा के साथ वक्त गुजारता, मगर अम्मा दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अम्मा खुद को कमज़ोर होता पाकर बहुत परेशान रहती और फिर उसको साथ ही मेरी शादी की फ़िक्र लाहक हो गई। वो बस जल्द अज जल्द मेरी शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसको मेरे अकेलेपन की बहुत फ़िक्र सताने लगी थी। मैं तो इससे बहुत मना करता था, मगर वो मेरी एक न सुनती। इन्हीं दिनों मेरे दोस्त की शादी थी, जिसमें उसने मुझे शिरकत करने की दावत दी थी। जब अम्मा को मेरे दोस्त की शादी के बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दोस्त तीसरी शादी कर रहा है, मगर तुम तो एक भी नहीं करते। उन्होंने हंसते हुए मुझे शर्म दिलाई, मगर मैं मुस्कुरा कर उनकी बात टाल गया। मेरे दोस्त की शादी पर जाने का मेरा कोई इरादा न था, क्योंकि मैं अम्मा की बीमारी की वजह से उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। मगर मैं अम्मा के बेहद इसरार पर शादी में शिरकत पर राजी हो गया। लेकिन मैंने अम्मा के सामने शर्त रख दी कि वो भी मेरे साथ शादी में शरीक होंगी, तो अम्मा ने मेरी बात मान ली। जब मेरे दोस्त की शादी का दिन आन पहुंचा, अम्मा मेरे हमरा तैयार होकर शादी में शिरकत के लिए चल पड़ी। उन्हें जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा था, मगर उन्होंने मुझे इस बात का एहसास न होने दिया, क्योंकि वह शादी में शिरकत की खुशी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। जब मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा तो उसे शादी की मुबारकबाद दी। उसे अम्मा से मिलकर बेहद खुशी हुई। वो अम्मा को बातों ही बातों में कहने लगा कि अब मेरे दोस्त के सर पर भी सेहरा सजाने की फिक्र करे। जब मैं अपने दोस्त के हमरा बारात लेकर लड़की वालों के घर दाखिल हुआ तो बारात के इस्तकबाल में बहुत सी लड़कियां खड़ी हुई थी। इनके हाथों में फूलों की प्लेटें थी, जो कि वो बारातियों पर बरसा रही थीं। अचानक से बेदिहानी में मेरी टक्कर वहां पर खड़ी एक लड़की से हो गई, जिसने गुस्से भरी नज़रों से मेरी जानिब घूर कर देखा। उसे पहली नज़र देखकर मुझे उससे मोहब्बत हो गई और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मुझे अम्मा के लिए बहू मिल गई हो। मैं अपनी सोच पर खिलखिला कर रह गया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं भी अपने दोस्त के साथ ही सेहरा बांध कर बैठ जाऊं और उसके साथ अपनी दुल्हन को भी ब्याह कर घर ले आऊं। मुझे अपनी खाम ख्याली पर बहुत हंसी आ रही थी। मैं शादी में अपने दोस्त के साथ साथ ही रहा। बातों ही बातों में मुझे अपने दोस्त के ज़रिए से मालूम हुआ कि जिस लड़की से मेरी टक्कर हुई है वो इसकी सबसे छोटी साली थी, जो कि अपने घर वालों की बहुत लाडली थी। मेरा दिल तो हथेली पर सरसों जमाने के लिए बेताब हो रहा था। तो मैंने अपने दोस्त की शादी में ही अम्मा को इस लड़की के बारे में सब कुछ बताया, जो कि मेरे दोस्त की साली थी। अम्मा की तो बैठे बैठे परेशानी ही ख़त्म हो गई थी। उन्हें इतनी अच्छी बहू मिलने जा रही थी, उन्हें और क्या चाहिए था। उन्होंने मेरे दोस्त की अम्मा की मदद से मेरे दोस्त की सास से बात की। वो तो दूसरी बेटी के रिश्ते होने पर फूले नहीं समा रही थी। उन्हें मेरी तरफ से भेजे गए रिश्ते पर कोई एतराज़ न था। यूँ सब कुछ खुश असलूबी से तय हो गया था। जब मैंने अपने दोस्त को इस अचानक इत्तेफाक के बारे में सब कुछ बताया तो मुझे उसके चेहरे पर कोई खुशी की रमक नजर न आई, मगर उसने अपने चेहरे पर झूठी हंसी सजाते हुए मुझे अपने गले लगा लिया और रिश्ता पक्का होने पर मुबारकबाद देने लगा। मेरा दोस्त तीसरी शादी कर रहा था, पर उसकी एक भी औलाद नहीं थी। वो मुझसे कहने लगा कि अगर तू शादी करे तो मेरे वाली गलती न करना, बल्कि शादी की पहली रात बीवी के बिस्तर के नीचे कच्ची मछली ज़रूर रखना। मैं उसकी बात पर बहुत हंसा, लेकिन फिर जब मेरी शादी हुई तो कुछ सोचते हुए बीवी से छुपा कर कच्ची मछली बीवी के बिस्तर के नीचे रख दी। अगली सुबह जब आंख खुली तो दुनिया हिल गई कि बीवी दर्द से चीख रही थी और उसके चेहरे पर छोटे छोटे सुर्ख रंग के एलर्जी के निशान बन रहे थे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद सुर्ख होते जा रहे थे। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत परेशानी हुई और वो अपनी बिगड़ती हुई हालत देखकर मुसलसल चीखें मार रही थी। जब अम्मा उसकी चीखों की आवाज़ सुन के कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने मुझसे अपनी बहू के तकलीफ के बारे में पूछा। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ बताता, उनकी नज़र मेरे बिस्तर पर पड़ी। मैंने उनकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो घबरा गया। उन्होंने आगे बढ़कर चादर उठाई तो इसके नीचे मछली पड़ी हुई थी। मेरी बीवी मछली को देखकर मज़ीद चीखने लगी और बेहोश हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अम्मा ने खफगी से मेरी जानिब देखा, मगर उनकी सवालिया नज़रों का मेरे पास कोई जवाब न था। मैं नज़रें झुका कर रह गया। मैंने जल्दी से बीवी को उठाकर करीब पड़ी चारपाई पर डाला और उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगा, मगर वो होशो हवास से बेगाना थी। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। अम्मा ने मुझे कोसते हुए कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारी बीवी बेहोश पड़ी हुई है और तुम इसके चेहरे पर पानी फेंककर होश में लाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे इस अचानक अफादियत पर कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि सारी एलर्जी आहिस्ता आहिस्ता फैलती हुई उसके हाथों और पाँव पर भी बन रही थी। उसकी एलर्जी को फैलता देखकर मेरे छक्के छूट गए।
तो अम्मा ने मेरे सर पर चपत लगाते हुए मुझे एम्बुलेंस को फ़ोन करने का कहा। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो वो अपने एहलकारों के साथ हमारे घर में दाखिल हुई। मैं अपनी बीवी को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल की जानिब रवाना हुआ। मैं उसको मुसलसल होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो होशो हवास से बेगाना पड़ी हुई थी। अम्मा की खुद अपनी तबीयत नासाज थी तो मैं इनको अपने साथ लेकर न आया। जब मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो तमाम डॉक्टर्स इमरजेंसी में मौजूद थे। उन्होंने मेरी बीवी की हालत देखी तो सब डॉक्टर अलर्ट हो गए। वो जल्दी से मुआयना करने लगे और उन्होंने मुझे कच्चे खून की बोतलों का इंतज़ाम करने को कहा, क्योंकि मेरी बीवी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ रहा था। मैं अस्पताल में बने ब्लड बैंक की तरफ गया और वहाँ से खून की बोतल लेकर इमरजेंसी की तरफ रवाना हुआ। जब डॉक्टर ने खून की बोतलें लगा लीं तो उन्होंने मेरी बीवी की हालत से मुतल्लिक मुझे पुरसकून रहने को कहा, क्योंकि इसकी हालत ख़तरे से बाहर थी। मगर मुझे उसकी अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह समझ में नहीं आ रही थी। चंद घंटों बाद मेरी बीवी को होश आ गया। उसको होश में आता देखकर मेरी जान में जान आई। जब उसको होश आया तो डॉक्टर इसकी एलर्जी पर दवाई लगाने लगे। थोड़ी देर बाद अस्पताल के डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने कहा कि आपकी बीवी को किसी ऐसी चीज़ से एलर्जी है जो कि इसको मुतासिर करती है। अगर मरीज़ को किसी ऐसी चीज़ से एलर्जी हो जो कि इसकी हालत में ख़राबी का बायस बनती है तो मरीज़ को ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रखा करे। तो उन्होंने मेरी जानिब सवालिया नज़रों से देखा और मुझसे पूछा कि आपको किसी ऐसी चीज़ के बारे में मालूम है जिसकी वजह से आपकी बीवी को एलर्जिक हो। मैंने अपने कंधे हिलाते हुए लाइल्मी का इशारा किया तो उन्होंने मेरी तरफ से लाइल्मी पाकर फिर मेरी बीवी से पूछने का फ़ैसला किया और फिर वो मुझे अपने साथ लेकर इमरजेंसी के कमरे में दाखिल हुए। फिर डॉक्टर ने मेरी बीवी से एलर्जी के बारे में इस्तफसार किया। उसने डॉक्टर को बताया कि मुझे मछली से एलर्जी है। बचपन से ही अगर मैं मछली के करीब जाती थी या उसके पास से गुजरती तो मेरे ऊपर एलर्जी का अटैक होता था। डॉक्टर ने उससे कहा कि जब आपको अपनी बीमारी के बारे में मालूम है तो एहतियात करना लाजमी है, वरना इससे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है, क्योंकि आपकी एलर्जी शदीद किस्म की होती जा रही है जो कि जिस्म पर बढ़ती हुई आपके नाजुक हिस्सों को मुतासिर कर सकती है, जिसकी वजह से बेऔलादी के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं तो डॉक्टर की बात सुन के दंग रह गया। उसने मेरी बीवी को चेहरे पर लगाने वाली दवाई दी, कुछ और अद्वियात एक पर्चे पर लिखकर मेरे हाथ में थमा दी। मेरी बीवी ने मेरी जानिब सवालिया नज़रों से देखा और उसने मुझसे इस्तफसार किया कि आपके चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं। मैं इसके सवाल पर बौखला के रह गया और अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल किया और इस बात पर खुद को पुरसकून किया कि बीवी को बिस्तर के नीचे रखी गई मछली के बारे में कुछ इल्म न था। लेकिन मुझे इस बात की फ़िक्र सता रही थी कि बीवी को अस्पताल लाते वक्त मैंने बिस्तर के नीचे से मछली को नहीं हटाया था। मेरी बीवी की हालत काफ़ी बेहतर थी तो मैं इसको अपने साथ लेकर घर की जानिब रवाना हुआ। हम दोनों रास्ते में एक टैक्सी पर सवार हुए और मेडिकल स्टोर पर कुछ देर के लिए दवाइयाँ लेने की गर्ज से रुके तो वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जिनके साथ छोटे बच्चे भी थे। वो बच्चे इतने खूबसूरत थे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन्हें देखता जाऊँ। फिर मैंने उससे अपना ध्यान हटाकर मेडिकल स्टोर से मुतल्लिका दवाई ली। अचानक से मेरी नज़र इन बच्चों पर पड़ी तो वो बच्चे आपस में खेलते हुए सड़क की जानिब जा रहे थे। मैंने जल्दी से जाकर उनको पकड़ा और उनके वालिदैन के हवाले किया। एक बार दोबारा से मेरे जहन के पर्दों पर डॉक्टर की बात लहराई तो मैं खौफ से झुरझरी भर के रह गया। जब मैं अपनी बीवी के हमरा घर में दाखिल हुआ तो मेरे दिल में एक ही डर बैठा हुआ था, क्योंकि कमरे में बिस्तर के नीचे मछली रखी हुई थी। अगर बीवी कमरे में चली जाती तो मछली की वजह से उसकी दोबारा तबीयत ख़राब हो सकती थी। मुझे अम्मा सामने बैठी हुई नजर आई तो मैंने अपनी बीवी को माँ के पास जाने का कहा और ख़ुद जल्दी से कमरे में चला गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बिस्तर की चादर बदली हुई थी। मैंने बिस्तर उठाकर देखा तो इसके नीचे मछली मौजूद न थी तो मेरा अटका हुआ सांस बहाल हुआ। मुझे पूरा यकीन था कि अम्मा ने कमरे में मेरी की गई बेवकूफ़ी को साफ किया था, क्योंकि हमेशा माँ ही अपनी औलाद की गलत बातों पर पर्दा डालती है। जब मैं बाहर आया तो मैंने मुस्कुराकर अम्मा की तरफ देखा तो वो मेरी मुस्कुराहट का मतलब समझ गई और उसने मुझे नज़रों ही नज़रों में पुरसकून रहने का अंदिया दिया। फिर मेरी बीवी के सर पर प्यार करते हुए उसे कमरे में जाने को कहा। इनके जोड़ों में शदीद दर्द हो रहा था। मैंने उनको दबाते हुए देखा तो जल्दी से उनकी जानिब बढ़ा और परेशानी के आलम में उनकी दवाइयों के बारे में पूछने लगा, क्योंकि जब भी उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो मुझे परेशानी लाहक हो जाती थी। मैं उनको खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते उनकी हालत बिगड़ती गई। वो चारपाई पर सीधी लेट गई। मुझे कोई भी राह नज़र नहीं आ रही थी। मैं बार बार इनके हाथों को मसल रहा था, मगर इनके जिस्म में कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी।
اچانک سے ان کے جسم نے جھٹکے لینا شروع کر دیے اور پھر ایک دم ان کا وجود ساکت ہو گیا۔ میں قریب ہی موجود ایک ڈاکٹر کو جلدی سے بلا لایا۔ جب اس نے اماں کا معائنہ کیا تو نہایت افسوس اور دکھ سے اس نے کہا کہ تمہاری اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پاس پڑی ہوئی چادر اماں کے چہرے پر ڈال دی۔ میرے رونے کی آوازیں سن کر بیوی جلدی سے باہر آئی۔ جب اسے ساری صورتحال کے بارے میں علم ہوا تو وہ مجھے دلاسے دینے لگی، مگر مجھ پر کوئی بھی دلاسا اثر نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ابا کی وفات کا صدمہ بہت زیادہ تھا۔ ابھی میں اس صدمے سے بھی باہر نہیں آیا تھا کہ اماں بھی مجھے اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اماں کی چارپائی کے ساتھ لگ کر آنسو بہاتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ سب میرے قریبی رشتہ دار مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مجھے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب اماں کو سب عورتیں کفن میں لپیٹ کر غسل دینے کے بعد لے کر آئیں تو اماں کے چہرے پر مرنے کے بعد ایک الگ ہی نور چھایا ہوا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے بڑوں سے سنتا آیا تھا کہ مرنے کے بعد جس انسان کے چہرے پر نور ہوتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اماں کی نماز جنازہ کے بعد جب میں اس کو قبر میں اتارنے لگا تو میری ہمت جواب دے گئی، لیکن میں نے اللہ کی مرضی کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اماں کو قبر میں اتارا۔ اماں کو منو مٹی تلے دفنانے کے بعد میں اپنے تمام رشتہ داروں کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا۔ میری بیوی عورتوں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو دوسرا دن تھا کہ سب لوگ باتیں بنا رہے تھے۔ بہو کے سبز قدموں کی وجہ سے ساس کی موت ہو گئی۔ پتہ نہیں عورتوں کو ایسے موقعوں پر لگائی بجائی کی عادت کیوں ہوتی ہے۔ ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ایک انسان پہلے ہی دکھ میں مبتلا ہے اور اپنی باتوں سے مزید اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کرتی ہیں۔ میری بیوی بدھ بنین میں بیٹھی باتیں سن رہی تھی۔ جب اماں کے سوئم کا ختم ہو گیا تو سب قریبی رشتہ دار اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں اماں کی چیزوں کو بیٹھا دیکھ رہا تھا اور ایک ایک چیز کو بالکل اس طرح سنبھال کر رکھ رہا تھا جیسے اماں رکھا کرتی تھی۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے بہت دلاسا دیا۔ میں بالکل اس کی طرف سے غافل ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا تو الرجی کے نشان کافی کم ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نارمل ہوتا رہا۔ روزمرہ کے کاموں میں نے خود کو مصروف کر لیا تھا، مگر جب بھی بیوی کے الرجی زدہ چہرے کو دیکھتا تو بار بار دوست کی طرف خیال جاتا کہ اس نے مجھے ایسا جان لیوا مشورہ کیوں دیا جس سے میں اولاد جیسی نعمت سے محروم بھی ہو سکتا تھا۔ بار بار یہ سوال مجھے ستاتا تھا۔ میں اپنے دوست کے پاس جا کر اس سب کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ پھر مجھے بار بار اپنی بے وقوفی کا احساس ہوتا کہ اس نے 3 شادیاں کر کے بھی اس طرح کا عمل نہ کیا اور میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر ڈالا۔ ایک دن میں بٹے پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اسے اینٹوں کی ٹرالی کی ضرورت تھی تو وہ میرے پاس آیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کا کام مزدوروں سے کہہ کر کروانے لگا۔ وہاں پر موجود لوگ میری تعریف کر رہے تھے اور قدرتی طور پر وہاں بھٹے کا مالک بھی آیا ہوا تھا۔ وہ بھی میرے دوست کے سامنے میری شان میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ اللہ نے مجھے عزت عطا کی ہوئی تھی، لیکن میں کبھی بھی دل میں اس پر غرور نہیں کرتا تھا۔ سب لوگوں کی باتوں میں جب میرا دھیان دوست کی طرف کیا تو اس کے چہرے پر مجھے حقارت کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ وہ جب بھی مجھے ملتا تھا تو ہمیشہ اکھڑا سا ملتا۔ شادی پر بھی اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہ تھا، مگر میں اس کو اپنا جگری دوست سمجھتا تھا۔ جب میں نے اس کا تمام کام مکمل کروا لیا تو وہ جلدی سے جانے لگا، مگر میں نے اسے روک لیا اور اسے کہا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے مجھے کافی اکھڑا سا جواب دیا اور کہا کہ جو بات کرنی ہے جلدی کرو، میرے پاس زیادہ فالتو وقت نہیں ہے۔ تو میں نے اسے سارا ماجرا کہہ سنایا، جو بات اس نے مجھے اپنی شادی کے وقت کہی تھی، اور اس کی بات پر عمل کرنے کے نتیجے میں نے اسے ڈاکٹر کی تمام بات کہہ سنائی تو وہ ہیجانی کیفیت میں ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا تو مجھے اس کی بات کی سمجھ نہ آئی۔ اس نے میرے چہرے کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو کہنے لگا، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ میری سالی کو مچھلی سے بہت بری الرجی ہوتی ہے، اور اگر اس کو مزید الرجی ہوگی تو وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ مجھے ان تمام باتوں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے۔ میں اس بیچاری کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے تمہارے ساتھ شادی کرنے میں بہت جلدی کر دی، جس کا خمیازہ اسے اب بھگتنا پڑے گا۔ میرے سسرال والوں نے بنا مجھ سے پوچھے میرے دوست کو میری سالی کا رشتہ دے دیا۔ میں یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اور سونے پہ سہاگا، وہ بھی اس دوست کو جو مجھے ساری زندگی پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ گھر میں ٹارچر کیا جاتا تھا۔ میرے ابا تو تمہاری مثالیں دے دے کر مجھے ذہنی طور پر ٹینشن دیتے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے میں تو تمہاری طرح بن جاؤں، میری اپنی کوئی زندگی نہیں، تم تو ان کی ہوش و حواس پر سوار تھے۔ میں تمہاری وجہ سے حسد کی آگ میں اندر ہی اندر جلتا رہا۔
जब मुझे तुमसे बदला लेने का मौका मिला तो मैं भला इसको कैसे गंवा सकता था। तो मैंने तुम्हें तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी में मुतासिर करने का फ़ैसला किया। तुम अगर मेरी साली से शादी कर ही चुके थे तो तुमसे बदला लेना तो मेरा बनता था ना। तुमने इतना बड़ा फ़ैसला मुझसे पूछे बिना ही कर लिया और मुझे बस फीका सा बताने के लिए आ गए। इसलिए मैंने तुम्हारे कान में मछली वाली बात कही थी, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी फितरत के हाथों से मजबूर होता है। उसको जो काम फ़ायदे के लिए बताया जाए वो इसको करके ही रहता है। और मुझसे ज़्यादा कौन अच्छे तरीके से जानता है कि तुम्हें बच्चों से कितना प्यार है। तुम तो जहाँ भी कोई बच्चा देखते थे उसको प्यार करने लग जाते थे। तो मैंने सोचा कि तुम तो राह चलतों से इतना प्यार करते हो तो अपनी औलाद को तो सीने से लगा कर रखोगे। इसलिए मैंने वहाँ पर वार करने का फ़ैसला किया जहाँ तुम्हें चोट भी ज़्यादा लगेगी। इसने मुझ पर तरस खाते हुए कहा कि अफसोस अभी भी तुम पर मेरा वार अच्छे से नहीं लगा। मैं इसकी तमाम बातों को साकत वजूद के साथ सुन रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस दोस्त को मैं अपना जिगरी दोस्त समझता था वो मेरे साथ इस तरह भी कर सकता है। इसकी बातें सुनकर मेरा दिल जैसे उछल कर हलक में आ गया। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। मैं 1 मिनट भी उसके पास न रुक सका और जाकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मगर खुद को काम में मसरूफ़ होने के लिए सिर्फ मैं ज़ाहिर करवा रहा था, वरना मेरा दिमाग तो अपने दोस्त की बातों की तरफ लगा हुआ था। वहशत की आग में जल रहा था। उसने तो दोस्ती जैसे रिश्ते को ही पामाल कर डाला। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद मुझे अपने वजूद में ताकत ख़त्म होती महसूस हो रही थी। तो मैं भट्टे के मालिक से जल्दी छुट्टी लेकर घर चला गया। जब घर गया तो बीवी को कामों में मसरूफ़ देखा। मैं अपनी कोई परेशानी उस पर जाहिर नहीं करना चाहता था तो खामोशी से कमरे में चला गया, मगर वो मेरी परेशानी को भांप चुकी थी। इसलिए सारे कामों को छोड़कर कमरे में मेरे पास आ गई। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि कोई परेशानी है। उसके पूछने के बाद मैं खुद पर ज़ब्त न रख सका और उसको शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। बातें सुनने के बाद वो बहुत हैरान हुई। उससे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि यही सच है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसने जो कुछ सोचा ये उसका फेल था। तब अल्लाह ने हमारे नसीब में औलाद लिखी होगी तो हमें ज़रूर अता करेगा, वरना हम इंसान उसकी नेमत के आगे बेबस हैं। जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो मेरी बीवी उम्मीद से हो गई और अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बेटे से नवाजा। मैं उसकी अता करदा नेमत पर हर वक्त शुक्र अदा करता रहता था। मेरे बेटे की पैदाइश पर जब मेरा दोस्त अपनी बीवी के हमरा हमारे घर में दाखिल हुआ तो इसका चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था, क्योंकि उसने तो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मगर अल्लाह हमेशा सब्र का मीठा फल देता है। तीसरी शादी करने के बावजूद भी उसके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। जब वो मेरे सामने आया तो उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए। उसने कहा कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर तुम्हारे पास औलाद मौजूद है। मुझे लगता है कि मेरा हसद ही है जो मेरे अंदर पल रहा था और जिसकी सज़ा के नतीजे में अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा हुआ है। उसने मेरी मिन्नत समाजत करते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि हसद नेकियों को खा जाता है। मैंने उसको माफ़ कर दिया और अपनी औलाद उसकी गोद में दे दी और हम दोनों ही बच्चे को प्यार करने लगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।